Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Pooja Negin, assistant professor, and today's topic is heartbreaking and I wish कि future में मुझे कभी भी ऐसी news ना मिले. And so if you're someone who is not living under a rock, so you must have heard about the case of Jyoti Changra. She was a 21-year-old student from Shadar University, and on July 18, 2025, she attempted suicide. She was a second year BDS student who tragically took her own life in a hostel room, leaving behind a note that spoke of relentless humiliation, harassment, and mental torture by her faculty members. So 18th of July ko this happened, and since I am an alumni of Shadar University, I have completed my masters from there. एक्चुअली मैंने ये न्यूज़ 18 को ही सुन ली थी, बट मेरे माइंड में आया नहीं कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, because this is such a sensitive topic. But today actually one of my student asked कि ma'am what's your take on this, and we were actually discussing about this case. उन्होंने मुझसे पूछा and वहाँ पे उनसे डिस्कस करते हुए I realized कि I need to talk about this, not only as an educator, a teacher, but as a student as well. And now is the time that we have to understand that how important your mental health is. This case is so sensitive and I'm so sad by the fact कि अभी भी ऐसा हो रहा है एंड इस एक्सटेंट तक हो रहा है कि स्टूडेंट्स को सुसाइड करना पड़ रहा है. इन टुडेज क्लासरूम इंटरेक्शन वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड कि मैम क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ व्हेन यू वर देयर. सो आई सेड नो, मेरे साथ नहीं हुआ. And not every university is the same, not every department is the same, not every faculty member is the same. अगर शारदा यूनिवर्सिटी में केस हुआ है, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि जिसने भी ये किया है एंड अगर वो गलत हुआ है तो उनको ज्योति को जस्टिस दिलाना इज़ देयर राइट. ठीक है, ज्योति को जस्टिस दिलाना, अकाउंटेबिलिटी कराना इज़ वॉट एज अ यूनिवर्सिटी दे कैन डू. बट इसका मतलब ये नहीं है, आई हैव बीन देयर एंड 2 साल मैं वहाँ पे रही हूँ. द फैकल्टीज़ आई हैड वर अमेजिंग एंड आई नो बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज़ थी, बट किसी 2 लोगों के बारे में ये बोल के एंड 10 लोगों के बारे में जो भी चीज़ें हुई हैं, येस यूनिवर्सिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन की जाएंगी. नाउ आई एम नॉट एक्चुअली हियर टू डिफेंड एनी वन, बट आई बिलीव कि यहाँ से हमें जो सीख मिलनी चाहिए एज यूनिवर्सिटी एज एजुकेटर इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम स्टूडेंट्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव होना होगा. And this is a time where we have to take care and be accountable of whatever we say in our classroom. Because ज्योति के केस में भी यही हुआ. On July 10th, she was accused of forging a professor's signature on her project file. जितना कि बताया गया, बाद में जाके she was humiliated कि उसने ऐसा किया है. And as a teacher, I believe कई बार ऐसा होता है कि आप उन्हें डांटते हैं, but I don't know the level, obviously किस लेवल तक उसे humiliate किया गया. And उसके बाद ही actually उसके friend ने एक statement दिया कि उस humiliation से she took that step. She was also mocked by her faculties, जो कि मेरे रिपोर्ट्स में जो भी पढ़ा है. So here we have to understand few things, which is to have respect and to have empathy towards our student. जितना मैं एज अ टीचर अपने बच्चों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती हूँ, आई बिलीव मुझे वही सेम लेवल की रिस्पेक्ट अपने स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी. अनटिल अनलेस इट लिटरली गोज आउट ऑफ माई हैंड्स कि मैं शायद से कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है. अदरवाइज आई बिलीव कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना होगा and to have that kind of empathy, because आजकल के टाइम में we know students they go through a lot in their personal life, in their professional life. इतना सब कुछ हो रहा है, blame social media और maybe society these days, but they are going through a lot. और इस टाइम में I can't be someone जो कि उन्हें हर एक चीज़ के लिए बार बार mentally harass करे, consciously करे या subconsciously करे. आप अगर कर रहे हैं, harassment कर रहे हैं, उनको molest कर रहे हैं, then it's up to you, it's your problem. एंड आई बिलीव दैट यू शुड बी एम्पैथेटिक इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, आप उस पर दोबारा चिल्ला के नहीं बोला जा सकता. ओके, वी आर टीचर्स फॉर अ रीज़न, वी एजुकेटर्स फॉर अ रीज़न. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइन कि ओके बच्चा एक लिमिट के बाद ऑब्वियसली द स्टूडेंट कांट डिसरिस्पेक्ट मी, ठीक है, बट देयर शुड बी अ लिमिट जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में रखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए एज एजुकेटर. एंड नेक्स्ट आई बिलीव देयर शुड बी क्लियर पॉलिसीज अबाउट द हैरासमेंट केस, बिकॉज स्टिल नॉट ओनली फ्रॉम एजुकेटर्स बट स्टूडेंट्स भी आपस में, बैचमेट्स भी आपस में, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को वहाँ पे
हरास किया जाता है। उनके लिए एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है देयर शुड बी दिस थिंग कि ग्रीवेंस सेल होने चाहिए कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत है पर्सनल लेवल पे, क्लासरूम पे, कि बच्चे इतना बड़ा स्टेप ना ले, पहले जाके कोई होना चाहिए अकाउंटेबल कि उसको जाके बोले, बताए, सो दैट उस पर कोई चीज़ हो पाए, कोई मतलब आके यूनिवर्सिटी कुछ काम कर सके। अदरवाइज बच्चा इतनी एक्सट्रीम केस पे जा रहा है तो आई कांट थिंक कि किस एक्सटेंट तक चीज़ें गई होंगी। एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट थिंग विच आई बिलीव दैट वी शुड हैव मोर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेल्स, रेगुलर मेंटल हेल्थ को लेके चेकिंग हो, उसकी काउंसलिंग हो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ को लेके व्हेन आई सी माई स्टूडेंट्स, मुझे खुद ऐसा लगता है कि आई हैव सीन माई स्टूडेंट्स क्राइंग बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी। नाउ व्हाट कैन आई डू, मैं एज अ टीचर उसके लिए थोड़ा सा आई गेस, अगर मुझे पता है कि वो अच्छे टाइम पे नहीं चल रही है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल और ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, बट आई कैन डू एज अ टीचर कि मैं उस टाइम उससे थोड़ा टाइम दे सकती हूँ। अगर वो लेक्चर में इतना अटेंटिव नहीं है, आई कैन लेट हर बी, आई कैन लेट हिम बी, ठीक है, वो जैसे भी रहना चाह रहा है, रहना चाह रही है, मुझे उसे रहने देना चाहिए, बिकॉज आई नो शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम एंड स्पेशली एट दिस एज। मैं उसे कितनी भी काउंसलिंग कर दूँ, मे बी मेरी काउंसलिंग वोंट हेल्प हर, ओनली टाइम कैन लेट दिस पास एंड आफ्टर ऑल आई नो कि कुछ टाइम बाद शील बी ओके और हील बी ओके, दिल गेट बैक टू दैट ट्रैक, राइट। बट उस टाइम पे अगर मैं उसके किसी गलती को और ज़्यादा पोक करने लग जाऊँ तो मुझे पता है कि ऑलरेडी वो बच्चा एक अच्छे स्टेज पे नहीं है, एंड उसके बाद में जाके उसे और इस लेवल तक हरास करूँ कि शायद वो डिप्रेशन में चला जाए या फिर इतना बड़ा स्टेप ले ले, इज समथिंग रॉन्ग। वी एज एजुकेटर शुड स्टार्ट वैलिडेटिंग फीलिंग्स, बिकॉज नॉट जस्ट अस, मेरा मूड ख़राब है तो एज ए एजुकेटर मैं तो नहीं करूँगी ना कि मेरा आज मूड ख़राब है तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँ ना, सब पे चिल्ला लूँ, राइट। और एज अ स्टूडेंट भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि ठीक है, मतलब बच्चे का अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो मेरे साथ अच्छा बिहेव ना करे। दिस इज समथिंग आई बिलीव, नहीं अच्छा दिन जा रहा है, जस्ट कीप क्वाइट, बैठे रहो आराम से, टेक रेस्ट। बट एज अ टीचर अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि इफ आई एम बिहेविंग वेल एंड आई एम नॉट गोइंग थ्रू अ गुड फेज ऑफ माई लाइफ, तो एज अ स्टूडेंट भी मतलब इट शुड बी वाइस वर्सा, जैसे आप मेरे साथ करेंगे वैसे हम आपके साथ करेंगे। बट यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एज अ टीचर, लाइक इवन इन ज्योति केस हमने देखा कि ज्योति के केस में 2 फैकल्टीज़ का नाम से सुसाइड नोट पे लिखा है, एंड वहाँ पे लिखा है कि उसने बहुत ज़्यादा उसको मेंटली हरास किया है, एंड उसके साथ 10 लोगों का और भी नाम एफआईआर में आया है। एंड कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एज ह्यूमन बींग्स और एज ए टीचर हम ये नहीं समझते हैं कि हर एक बच्चा अलग अलग होता है। मतलब शायद से मैं किसी, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति को ऑब्वियसली वहाँ पे मेंटली हरास को लगा होगा, उसे किया गया है, बट मे बी ऐसी ही सेम चीज़ कई और इंस्टीट्यूशन में भी कई और बच्चों के साथ की जा रही हो और होती हो। बट वहाँ पे देखो हर एक बच्चा अलग तरीके का होता है, कोई शायद से उस चीज़ को लेके उसने किसी ने बिल्कुल ही माइंड ना किया हो, कोई अभी डिप्रेस हो, मे बी किसी के शायद से ये चीज़ करियर में रिफ्लेक्ट हो, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, लाइक ज्योति, बिकॉज शी वॉज नॉट समवन की जो उसे अब चुपचाप अपने अंदर रख लेती एंड शी टुक दैट स्टेप। तो दैट इज वेयर योर एम्पैथी कम्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे स्टूडेंट के साथ डील कर रहे हैं, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट यहाँ पे आपकी बातें सुनने के लिए नहीं है, दे आर पेइंग लैक्स ऑफ फीस नॉट फॉर दिस। आप ये अपना काम करें, अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा है लेक्चर रूम से बाहर निकाल देना उनको, इज सिंपल एज दैट। और यू हैव टू हरास देम और उनको मोलेस्ट करना, उनको हरास करना, उनको नीचा दिखाना इज नॉट समथिंग विच शुड बी एक्सेप्टेबल इन एनी इंस्टीट्यूशन। सो ये केस अभी यहाँ पे हुआ है, बट आई रियली विश कि फ्यूचर में कभी हमें ऐसा देखने को ना मिले, एंड ये केस एक सबके लिए सबक होना चाहिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सारी इंस्टीट्यूशन के लिए, कि कभी भी ऐसी चीज़ रिपीट ना हो। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई टीचर बन के नहीं आता है, बट टीचर्स की ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है शायद से कि कैसे डील करना है, एंड आई कैन रिलेट टू दैट। हर किसी को पता नहीं होता है, हर कोई इतना एम्पैथेटिक नहीं होता है, हर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि एक बच्चे से बिहेव कर रहा है या उसको उस लेवल का नहीं डांटना है, कैसे समझाना है, क्या स्टेप लेने चाहिए। तो फॉर दिस आई ऑल्सो बिलीव कि हर यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाई जानी चाहिए, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि ये चीज़ बहुत एक्सट्रीम केस पे हो गई है, बट छोटे मोटे लेवल पे भी आई हैव सीन, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने देखा है कि टीचर्स जो बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं कई एंड दे बिलीव कि ओ माय गॉड दे हैव ऑल दिस पावर, देन प्लीज़ नोट दैट एज अ स्टूडेंट यू ऑल्सो हैव दिस पावर, ठीक है। आपको कहीं पे भी कभी भी दबने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज अ टीचर आई हैव सम पावर, बट एज अ स्टूडेंट इट्स नॉट दैट कि आपको मैं जो बोल रही हूँ आपको वो करना ही करना है, या फिर मैं अगर आपको इंसल्ट कर रही हूँ तो आपको सुननी ही सुननी है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी की इंसल्ट सुनने के लिए नहीं है, एंड अगर आपको पता है कि आपने सही चीज़ करी है, अगर आपने कुछ गलत नहीं बोला है, देन यू मस्ट टेक योर स्टैंड। तो आपको अपना स्टैंड लेना शुरू करना पड़ेगा, एंड प्लीज़ नेवर बी स्केर्ड ऑफ सेइंग द राइट थिंग और टेकिंग द राइट स्टेप,
बिकॉज लाइफ में ये तो भी छोटी चीज़ है कॉलेज में, बाद में जाके आप कंपनीज में काम करना शुरू करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करेंगे, एंड यू रियलाइज़ कि बहुत बार लाइफ में ऐसे सब कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको कई बार आवाज़ उठानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा। एंड ना ही टीचर कभी कुछ गलत बोले, ना ही स्टूडेंट कभी कुछ गलत बोले। एक बाउंड्री होनी चाहिए किसी एक लेवल तक की, कि ठीक है उनका भी राइट नहीं है आपको इंसल्ट करने का, ना आपका राइट है किसी टीचर को इंसल्ट करने का। अगर कोई भी कुछ गलत बोले, नेवर बी फेयर ऑफ द फैक्ट कि वो मार्क्स काट देंगे। प्लीज़ गो टू डीन, प्लीज़ गो टू एनी हाई अथॉरिटी एंड टेल देम। हमेशा से एक्शन लिया जाता है, और एक्शन अगर नहीं भी लिया जा रहा है, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस वन टूल जो कि हमेशा से काम करेगा, दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस नाउ जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कभी भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है और कोई भी उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, देन यू कैन ऑलवेज पोस्ट एंड शेयर। एंड ट्रस्ट मी, इतनी बड़ी कम्युनिटी अब हमारे पास सोशल मीडिया में है कि अगर कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है ना, कोई अगर एक्शन शायद ना भी लेना चाहे, उसको एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया होल्ड्स पावर। बट ऑलवेज मेक श्योर शुडंट बी रॉन्ग। गलत कामों के लिए नहीं सोशल मीडिया का यूज़ करना है, बट सही चीज़ों के लिए यूज़ करना है, एंड टू टेक योर स्टैंड, टू प्रूव योर सेल्फ राइट। And if you know that you have done all the right things and you haven't done anything wrong, तो please use your power, because as a student you also have this power कि आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। मे बी ज्योति वहाँ पे ये सब नहीं समझ पाई होगी, बट ज्योति अगर किसी वाइस चांसलर कहीं पे भी कुछ भी ऐसे कंप्लेन करती तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता। एंड ट्रस्ट मी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। नाउ हर एक अलग अलग टाइप का स्टूडेंट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोफेसर्स ने सही किया, ऑब्वियसली ऐसा बोलना, इंसल्ट करना इज़ ऑलवेज रॉन्ग, बट वहाँ पे प्रोफेसर को शायद से कभी खुद नहीं लगा होगा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी। नाउ दिस इज़ द पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें कभी भी नहीं पता हो सकता है कि कोई स्टूडेंट क्या स्टेप ले ले। इट्स नॉट कि शायद उसके माइंड में सिर्फ यही रहा होगा, देयर विल बी अदर थिंग्स एज वेल जिसके माइंड में चल रही हो, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से उसको ऐसा लग रहा हो कि उसकी इंसल्ट की जा रही है एंड ये मेंटल हरासमेंट हो रहा है, एंड अल्टीमेटली शी टुक हर लाइफ। तो दिस इज़ अ लेसन फॉर अदर्स। एक लाइफ ऑब्वियसली जा चुकी है, एंड बट हम ये सेम चीज़ और लोगों के साथ हम नहीं होने दे सकते हैं। सो एज एजुकेटर, एज अ स्टूडेंट, एंड इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी कोई नोन में भी आप देख रही हैं कोई सफ़र कर रहा है, प्लीज़ गो एंड हेल्प देम। बातचीत करो अगर आपको लगता है, देन देयर आर सो मेनी फ्री काउंसलर्स ऑनलाइन, ठीक है। डायल, कॉल, टॉक, and please don't be ashamed of the fact कि you're not feeling well. Now this is something very natural these days, and as a generation जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हों, ऐसा फील करना बहुत नेचुरल है, बट प्लीज़ नेवर एवर टेक योर लाइफ। मतलब सुसाइड नहीं करना चाहिए, एंड आई नो दैट वो शायद से खुद भी नहीं करना चाह रही होंगी, बट उसको करना पड़ा फॉर एनी रीज़न, बिकॉज चीज़ें उसके हाथ से उसे लगा था बहुत एक्सट्रीम चली गई हैं, एंड इट्स लिटरली आउट ऑफ हर हैंड्स नाउ। सो उन्होंने, ज्योति ने ये स्टेप लिया। But this is very heartbreaking to see such a bright student with so much of energy, just 21-year-old. मतलब she was going to be a doctor, and उसकी family and I, whenever I see her videos, ये सब कुछ, I feel really bad, and I wish कि ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो. So if you're a student watching this, then please understand कि आपके पास बहुत कुछ है करने को, एंड दिस शुड नॉट बी समथिंग विच यू शुड बी डूइंग। एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू बी अ टीचर, देन प्लीज़ बी अवेयर विद योर वर्ड्स, एंड प्लीज़ नोट कि आपको कब कैसे कैसे कहाँ पे क्या कहना है, हाउ यू हैव टू बिहेव एज अ टीचर। एंड what I truly believe is that legal consequences are not going to be enough for this, because we need to weave empathy into our teaching style, into our teaching culture and our profession, so that the next time this tragedy won't repeat. Because otherwise अगर हम ये सोच लेंगे कि लीगली ठीक है, जस्टिस सर्व हो गई है, बिकॉज वी नो कि शायद से ये केस क्लोज हो जाएगा, बट इफ़ यू रियली विश कि सेम चीज़ रिपीट ना हो, वी हैव टू change our things, we have to change our styles, we have to be more empathetic towards our students. And if you know someone जो कि सेम चीज़ें स्ट्रगल कर रहा है, then please talk and reach out to your university counselor के पास जाओ, या तो otherwise just go and talk to your friends, go and talk to someone you are comfortable with. दूसरे और फैकल्टी मेम्बर्स के पास जाके बात कर लो। अगर कोई एक इंसान से तुम्हें लगता है यू आर नॉट comfortable, but there are other faculties as well. You can always go and talk. Justice must be served for Jyoti and her family, and for the trust that every student places in us. Rest in peace, Jyoti. May your story save others.